Great. Welcome everyone. Welcome to Healing Circle Talks. Before we begin the circle, as always, we would love to read the guidelines. Yeah. Healing circles are safe havens. They are built on the foundation of kindness and respect. We all agree to treat each other with compassion and curiosity. We honor each other's unique ways of healing and don't presume to advise or fix or try to save each other. We hold all the stories shared in this circle within us, and we trust each one of us has guidance we need within us, and we rely on the power of silence to access it. So, thank you so much for joining in today's Healing Circle Talks. And आज हमारे साथ में है अनिल पाटिल, who is a colorectal cancer survivor. His symptoms started with blood in the stool. When he consulted the doctors for the same, it was initially diagnosed as a fissure. The doctor gave him medicine for 15 days, but as there was no change in the condition, he came to Nashik, where another doctor did a colonoscopy and the tumor was detected. He got married in just 3 years and his kid was just 2 months old. He underwent surgery and was provided with a colostomy bag. Everything was new for him, but he got adjusted soon. Ostomy Association of India also provided him all the necessities and helped him change quickly. Anil says a colostomy bag is not a big deal. There might be some changes in your physical appearance, but it will not change who you are. After all, you are who you are. Such a wonderful message, Anilji, that you have shared here. And I personally can relate a lot with your journey because Nitesh had exact same cancer. उन्हें भी colorectal cancer था और उनको भी colostomy bag था. So how life changes before the surgery, after the surgery, and how difficult it is for somebody to accept the change. It's not easy, but at the same time you have proved that it's not impossible as well. And I'm sure your journey will be an example and inspiration to many others who go through this dilemma of whether to go for the surgery, not to go for the surgery, और life कैसी होगी, मुझे अब मेरे spouse accept करेंगे क्या, मुझे एक एक confidence level जो shatter हो जाता है किसी का. So ये सब dilemmas doubt शुरू में आते हैं. So hats off to you that you are sharing your journey here and inspiring many others. So Anilji, I'm requesting you to unmute yourself and would love to know more from you about your journey. अगर आप unmute करेंगे खुद को, अनिल जी? Yes. हेलो. हेलो. हाँ, आ रहा है क्या आवाज? आपका आवाज आ रहा है अच्छे से. आ रहा है ना? Yes, आ रहा है आपका आवाज. हाँ हाँ, तो मैं हिंदी में बात करता हूँ खाली. आप हिंदी में बात करिए. मैं आपसे मैं वही बोल रही थी कि आपकी जर्नी बहुत ही इंस्पायरिंग है हाँ और हाँ, वो समझता है लेकिन बोलते नहीं आता है ठीक मुझको. है. तो मेरा 28 साल का उम्र था जब. हेलो, आवाज आ रहा है ना? आ रही है. हाँ अच्छा. रही है. हाँ बोलिए बोलिए अच्छे तरह. हाँ, तो 28 साल का उम्र था और मैं इंटीरियर में रह रहा था जब. छोटा सा गांव था हमारा, तालुका प्लेस के भी अंदर था, तो उधर रहता था. फिर मेरे को स्टार्ट में ऐसा जो अभी बोला है तुमने सब, वैसा ही जरा तकलीफ हुआ था. स्टूल में से खून निकलना वगैरह ऐसा. फिर ऐसा बेचैन सा लगने लगा. फिर मैं जो डिस्ट्रिक्ट प्लेस है हमारा धुलिया, तो धुलिया को गया मैं. तो धुलिया में जाकर वो डॉक्टर भामरे करके जो मिनिस्टर थे देखो अपना इधर, तो वो एमएस थे, तो उनको दिखाया मैंने. तो पहले उन्होंने चेक करने के बाद बोला कि ये फिशर वगैरह हो सकता है ऐसा करके. तो फिर उन्होंने 15 दिन का मेडिसिन दिया और उसके बाद मेडिसिन लेने के बाद मेरे को कुछ ऐसा आराम रिलीफ नहीं मिला. फिर मैं नासिक में आया. फिर नासिक हमारा जो महाराष्ट्र में नासिक है, उधर डॉक्टर रमेश पाटिल करके एमएस है, उनके पास आया. नहीं, उनके पहले मैं डॉक्टर उपाध्याय करके उनको दिखाया. तो उन्होंने भी पहले डॉक्टर भामरे जैसा ही मेरे को बोला कि आपको ऐसे कुछ सीरियस नहीं लग रहा है. तो उन्होंने भी 15 दिन का मेरे को मेडिसिन दिया. फिर उनका भी लिया तो भी मेरे को कुछ आराम नहीं गिरा. फिर वापस मैं नासिक आया गांव से. तो आने के बाद मेरा जो भाई था, बड़ा भाई जो है मेरा, वो ये फील्ड से रिलेटेड था. वो लिली नाम की जो मेडिसिन कंपनी है उसका वो एरिया मैनेजर था. तो फिर रमेश पाटिल करके एक डॉक्टर है एमएस नासिक में, तो उनके पास मेरे को लेके गया.
फिर उन्होंने इंडोस्कोपी जो रहता है अंदर, वो इंडोस्कोपी किया। इंडोस्कोपी करने के बाद फिर उनको ऐसा लगा कि कुछ तो भी इसमें ट्यूमर है। अपना जो रेक्टम है, रेक्टम के पास जो वाल रहता है अपना वाल, तो वाल को ऐसा एक छोटा सा ट्यूमर उनको डिटेक्ट हुआ। फिर उन्होंने बोला कि ये इसको ऐसा ऐसा तो परमा कोलोस्टॉमी करना पड़ेगा, इसको रेक्टम कैंसर है, ऐसा करके। फिर वो, मेरा उम्र खाली 28 था जब, अभी मेरा 48-49 एज है मेरा, तो 21 साल लगभग हो गया है मेरे को। 2002 में ये डिटेक्ट हुआ था मेरे को। फिर वो मेरे को घर वाले जो है वो बोलने को मेरे को जरा घबरा रहे थे कि भाई इसको कभी बोला तो ये मन में मन से टूट जाएगा, ये घबर जाएगा, फिर इसको क्या करना पड़ेगा। फिर डॉक्टर रमेश पाटिल जो है, उन्होंने बोला कि इधर नासिक में एक डॉक्टर है, डॉक्टर थे, डॉक्टर कवड़े पाटिल करके, एमएस थे, वो भी खुद एमएस थे। लेकिन उन्होंने बोला कि इनको 2 महीने पहले इनको ये ऐसा ये हुआ है, सेम सिचुएशन इनके जैसा उनका था। तो वह उनका अभी कोलोस्टॉमी किया है। तो जो डॉक्टर के पास, डॉक्टर लीलावती हॉस्पिटल जो है बम्बई में, उनके डॉक्टर जगन्नाथ करके बोले, तो अच्छा इसमें से, इसमें वो रोज के 2-3 सर्जरी वो करते हैं कोलोस्टॉमी की, तो उन्होंने उधर किया है। तो आप भी उधर जाके इनका जो खतरा है वो टाल सकते हैं, ऐसा उन्होंने बोला। फिर उनको वो जो बात थी वो सब उनके पास हुआ, जो भाई और जो गांव से डॉक्टर थे मेरे साथ, वो सब उनके पास बोला उन्होंने। तो वो बोले इसको कैसा बोलने का, तो बोले वो डॉक्टर के पास इनको लेके जाओ तुम, डॉक्टर कवड़े पाटिल जो खुद इसका शिकार है, तो जिनका कोलोस्टॉमी हुआ है उनके पास इनको लेके जाओ, फिर वो सब दिखाएंगे बोलेंगे। तो उन्होंने उनको कॉल कर दिया कि ऐसा ऐसा करके आ रहे अनिल पाटिल करके, तो आप उधर उनको ठीक से सब बता दो, कैसा बताना है ऐसा करके। तो फिर वो मेरे को उधर लेके गए, जब तक मेरे को पता नहीं था कि ऐसा क्या हुआ है ऐसा करके। वो बोले एक डॉक्टर है उनके पास जाना है। फिर हम उधर गए, तो ये 2-3 लोग जो है वो अंदर गए, मेरा भाई डॉक्टर, दूसरा बड़ा भाई उसे, और अंदर जाके वो डॉक्टर से बात किया उन्होंने कि ऐसा ऐसा है। तो डॉक्टर ने बोला कि ऐसा छिपा कर नहीं चलेगा, उनका मनोधैर्य, उनका ये जो बढ़ाना है, आपको हौसला बढ़ाना होगा, तो आपको उनसे बात करना ही पड़ेगा, उनको अंदर बुलाओ, मैं उनसे बात करता हूँ करके। फिर वो खुद मेरे को अंदर बुलाया। वो तीनों लोग बैठे थे, मैं चौथा बैठा उधर। और बैठने के बाद उन्होंने मेरे को सब बोला कि डॉक्टर जो एमएस डॉक्टर थे कवड़े पाटिल, वो बोलने लगे कि अनिल ऐसा ऐसा है, इसमें घबराने का कुछ नहीं है, मैंने खुद अभी जो कोलोस्टॉमी किया है, जब तक मेरे को कुछ पता नहीं था कि क्या है ये। तो उन्होंने सब बोला मेरे को डिटेल में कि ये ऐसा ऐसा रेक्टम, रेक्टम क्या होता है, वो ऐसा उन्होंने सब वो आकृति दिखाया मेरे को, जो अपना रहता है ना डिजाइन सब, वो निकाल के उनको वो बताया कि ऐसा ऐसा जो पार्ट रहता है उसको कट करना पड़ेगा। फिर उन्होंने खुद का मेरे को दिखाया ओपन करके कि देखो ये ऐसा ऐसा रहता है, बैग लगाना पड़ता है वगैरह वगैरह। तो मैं बोला चलो ठीक है, जो है उसको तो फेस करना पड़ेगा अपने को। कब लगा नहीं होगा। हाँ हाँ। एक मिनट, शायद किसी ने अनम्यूट किया है। लेट मी जस्ट एक बार चेक कर लेती हूँ मैं। हाँ जी आप कंटिन्यू करिए अनिल जी। हाँ, बोलो क्या। नहीं, वो गलती से आवाज आया था, आप कंटिन्यू करिए। हाँ हाँ। तो फिर उन्होंने खुद का दिखाया। फिर जो हमने तय किया कि भाई चलो अपन इसमें जाएंगे जहाँ उनका किया है कि सबसे अच्छा डॉक्टर है बोले ऐसा करके। तो डॉक्टर जगन्नाथ करके लीलावती हॉस्पिटल में थे वो। तो उनके फिर मेरा जो बाइक था वो फील्ड में था, इसलिए उनका 1 महीना लगता था अपॉइंटमेंट लेने को। लेकिन उसने सिंगल डे में उनका अपॉइंटमेंट लिया, और तीसरे दिन का अपॉइंटमेंट मिला मेरे को। फिर हम बम्बई में गए लीलावती में, उधर उन्होंने चेक किया। फिर उन्होंने जो नासिक के जो रिपोर्ट थे, तो वो बोले ये रिपोर्ट हम इस पे हम काम नहीं करेंगे, इनका और इधर करेंगे। उन्होंने मेरे को ऐसा हाथ डाल के जो चेकिंग किया,
चेकिंग करने के बाद बराबर वो जो जगह थी उधर ही उन्होंने प्रेस किया, तो एकदम से मेरे को दुखने लगा। तो बोले ठीक है, इनका और इधर इंडोस्कोपी करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे। ऐसा सीटी स्कैन किया फिर सब लीलावती में, और वो करने के बाद वो डिसीजन लिया उन्होंने कि ये इनको ये एकदम 100% है, और इनका एज बहुत कम है। जब मेरा शादी को 3 साल हुआ था, और बेबी बॉय जो था लड़का मेरा, वो खाली 2 महीने का था, एकदम छोटा। तो घर वाले सब चिंता में गिर गए कि तो ऐसा खेड़े जो इंटीरियर में कैसा रहता है कि लोग घबर जाते हैं कि कैंसर में आदमी मर जाता है, जिंदा नहीं रहता वगैरह ऐसा करके। तो ऐसा वो वातावरण था। उसमें फिर हम बम्बई गए। डॉक्टर जगन्नाथ बोले कि ऐसा इसका इसका कभी ये रेक्टम बचाना होगा तुम्हारे को, वाल रेक्टम और वाल बचाना होगा। तो इसमें दो रहता है कि परमानेंट और टेम्पररी कोलोस्टोमी। टेम्पररी में क्या है, अपन कर सकते हैं बोले, लेकिन बाद में कभी और इसका ये कुछ हुआ तो इसकी जान को खतरा हो सकता है बाद में। तो इसके लिए परमानेंट का भी किया, तो परमानेंट में इसका जान बच जाएगा और ये ज्यादा साल जिएगा, 20-30 साल 40 साल ये जी सकता है, ऐसा उन्होंने बोला। फिर उधर खर्चा वगैरह पूछा, तो उधर खर्चा बहुत ज्यादा था। लेकिन मेरा पिताजी जो थे, पिताजी ने क्या बोला कि मेरा उन्होंने मेरे लिए फिर उस टाइम जो खेती था हमारा, तो खेती में से बाकी पार्ट बेचकर मेरा उन्होंने ट्रीटमेंट दिया उधर मेरे को। और फिर हमने 1 हफ्ते के अंदर ही उधर कोलोस्टॉमी कर लिया, डॉक्टर जगन्नाथ से ही किया। और फिर कोलोस्टॉमी होने के बाद मेरे को थोड़ा सा पहले 2-3 दिन ऐसा महसूस हुआ कि एकदम अलग से दुनिया में चल गए अपन, ऐसा लगने लगा मेरे को, क्योंकि सब सिस्टम बदल जाता है उसमें, कि जो नेचुरल रहता है और इधर से जो बाईपास जैसा हो जाता है। तो पहले 2-4 दिन तो एकदम ऐसा अनोखा लगा कि ये क्या है साला अपने जीवन में। थोड़ा मैं निराश हो गया थोड़ा सा। लेकिन धीरे धीरे जो 8 दिन गए, 15 दिन तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट था। फिर उन्होंने 15 दिन के बाद मेरे को डिस्चार्ज किया, और डिस्चार्ज के बाद हमारे को बताया कि ये अपना परेल में इंडियन स्टोमी एसोसिएशन है, तो उधर जाके तुम इसका जो जो हर डेली जो करने का है तुम्हारे को एनिमा, तो इनेमा के बारे में वो बताएंगे तुम्हारे को सब ऐसा। तो फिर हम वहां से वहां गए, डिस्चार्ज लेकर उधर गए। तो राष्ट्रीय एसोसिएशन में जाने के बाद उन्होंने हमको सब दिखाया, बोला कि ऐसा ऐसा होता है, ये रोज का पानी ऐसा 1 लीटर पानी छोड़ना वगैरह। फिर वो उसके बाद क्लीन हो जाता है, फिर बैग लगाना ऐसा। फिर वो सब मटेरियल लेकर फिर हम जो भाई जो मेरा नासिक में रहता था उसके घर पे आए। फिर डॉक्टर गोपाल करके बम्बई में, उन्होंने हम मेरे को रेडियो और कीमोथेरेपी दोनों सजेस्ट किया कि उम्र कम है तो इसके लिए इनको दोनों लगेगा ऐसा करके। फिर मैंने धूत हॉस्पिटल औरंगाबाद में रेडियोथेरेपी किया, और कीमोथेरेपी अपना नासिक में डॉक्टर रमेश पाटिल के इधर किया हमने। तो वो सब ट्रीटमेंट मेरा 4-6 महीने किया। मेरे जो सिर के बाल है कीमोथेरेपी की वजह से पूरे झड़ गए थे, और पूरा ये निकल गया था बाल मेरे सब। तो बाद में धीरे धीरे फिर आया, और फिर ऐसा एक साल मेरे को सेटल होने में गया उधर। 6 महीने तो ट्रीटमेंट चला। बाद में 2-4 महीने फिर थोड़ा सा ऐसा करके मैं मेरे काम में फिर लग गया मैं, और धीरे धीरे फिर सेटल हो गया। और उसके बाद जो मैं उभरा उसमें से, तो पहले से ज्यादा मैं वो काम करने लगा उसमें। और मेरा जो भी बिजनेस था, जो नौकरी था, उसमें मैं मन लगा के पहले से ज्यादा अच्छा काम मैं उसमें करने लगा फिर बाद में। और उसमें धीरे धीरे फिर अभी उसको 22 साल हो गए, मैं 2002 से अभी 2021 आ गया। तो मेरा बच्चा भी अभी बीई कर रहा है, बड़ा हो गया, बीई के सेकंड ईयर को है। और मैं एकदम अभी मैं खुद नासिक में आ गया रहने को। और हौसला इतना बढ़ा लिया मैंने मेरा खुद का कि मैं तो सजेशन यही दूंगा, जो इसमें जिसको डिटेक्ट हुआ है कि मैं तो जो हुआ है सर्जरी किया है, डिस्टर्ब है, मेंटली डिस्टर्ब है, तो मैं मेरा नंबर उनको देना है।
मैं उनसे बात करूंगा, उनका मोटिवेशन मैं करूंगा खुद। और मैं अच्छा एग्जांपल मैं मेरा खुद का दे रहा हूँ कि अभी 21 साल हो गया है और पहले से ज्यादा मैं सेटल होकर अच्छा काम करता हूँ। मन लगा के मेरा बिजनेस भी करता हूँ, रियल एस्टेट का काम करता हूँ, ड्यूटी भी करता हूँ टीचर की। टीचर बच्चों में रहता हूँ, सब मेरे दोस्त लोगों में रहता हूँ। थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शन रहते हैं उसमें कि दोपहर को 12 बजे तक। हाँ, एक मेरा कहना एक ऐसा है। तो Right. सुवर्ण त्याला फोन करून सांग ना यश। तो बैग लगाने का भी जरूरी नहीं रहता है। मैं बैग एनिमा सुबह में मैं रोज एनिमा करता हूँ। 10 साढ़े 10 बजे कब खाना खा लिया, 11 बजे ऐसा लगने लगता है कि अभी कुछ होगा नहीं मेरे को। नेचुरली ऐसा कुछ होगा नहीं, अंदर से कुछ आएगा नहीं, ऐसे कॉन्फिडेंस मेरे को आ जाता है। और फिर मैं खाली कॉटन के ऐसे मैंने टुकड़े बना लिए कपड़े के, और खाली कपड़ा लगा के वो अ, जो बाईपास दिया है उसको मैं खाली कपड़ा लगाता हूँ। और दूसरे दिन सुबह तक मैं खाली कपड़े पे रहता हूँ। 2 बार कपड़ा बदलता हूँ मैं। हाँ, कॉटन के कपड़े लगा लेता हूँ। बैग का इस्तेमाल भी लगता नहीं मेरे को। एक बैग 4 4 महीना जाता है मेरा। बैग का इस्तेमाल कब होता है, जब ऐसा खाने में कुछ गलत हो गया, ज्यादा तीखा खा लिया, थोड़ा रात को देर से सो गया, फिर दूसरे दिन थोड़ा तकलीफ होता है। लेकिन अपन ने खुद को नियम में जो रूल रहता है जिससे तकलीफ नहीं होता है, ऐसे रूल कभी अपने फॉलो कर लिया तो बैग का भी जरूरी लगता नहीं है। और एक एक बैग मेरे को 4 4 महीने उसको मैं यूज करता हूँ। खाली सुबह में एक बार बैग लगाता है मैं 1 घंटे के लिए बस। तो ये मेरा अभी तो मैं शॉपिंग में था, बाहर था, थोड़ा बाहर आके मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो ये मेरा पूरा कहानी है। मैं पूरा अभी 49 साल मेरा रनिंग चल रहा है। 28 साल में मैंने सर्जरी किया था। तो मैं बहुत खुश हूँ मेरे जीवन से, और मेरे को कोई टेंशन नहीं है। एकदम आनंद से मैं जीना जी रहा हूँ। बीवी और एक बच्चा है, उसके साथ मैं आनंद से रह रहा हूँ। तो ये मेरा पूरा हिस्ट्री है। तो अष्टमी एसोसिएशन ने भी हमारे को बहुत अच्छा मदद किया है। खाली इसमें एक मेरे को आप जो जो ये अपना संगठन है, जो एसोसिएशन है तुम्हारा, जो मुलाकात ले रहा है हमारा, तो उनसे मैं यही कहूंगा कि हमारा अभी मांग चल रहा है। हमारे जो अष्टमी एसोसिएशन के सेक्रेटरी शेखर ठाकुर और उनके साथ जो भी मेंबर है हमारे 20-25 हजार अभी जो अधिकृत मेंबर है ऑथराइज, और जो मेंबर नहीं हुए होंगे तो आप उनको बोलो कि मेंबर हो, उधर मेंबर हो जाओ। और मेंबर होने के बाद हमारा संघर्ष चल रहा है। हम मिनिस्ट्री से सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल रहे हैं, जो आरोग्य का डिपार्टमेंट का जो मिनिस्टर है उसको मिल रहे हैं, सोशल वेलफेयर को मिल रहे हैं। और हमारी ये मांग है कि जैसा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, यूके, इधर जो अष्टमी जो पेशेंट है उनको अपंगता, डिसेबिलिटी का दर्जा, अपंगत्व जो बोलते हैं उसका दर्जा दिया है। क्योंकि शरीर का एक अभिन्न अच्छा जो पार्ट रहता है वो हमने खोया है। तो आपके संगठन को भी हमारा मेरा ये मुलाकात के माध्यम से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपना इस्तेमाल, अपने पावर का इस्तेमाल करके ये हमारी जो एसोसिएशन है और इसमें जो सदस्य है, जो भी कोई अष्टमी होगा, फिर अष्टमी के बहुत सारे प्रकार है, तो सबको डिसेबिलिटी का दर्जा मिले। और जो सुविधाएं अपंग लोगों को रहती वो हमारे को मिले। इसके लिए हमारे साथ आप भी जुड़ जाओ और आप भी प्रयास करो और हमारे को मदद करो। ये मेरा आपको निवेदन है। तो ये मेरा पूरा हिस्ट्री मैंने बोला है। अभी आप क्या बोल रहे हैं, उधर से पूछ रहे होंगे तो पूछो। डेफिनेटली अनिल जी, थैंक यू सो थैंक मच। यू। आपने अपना जर्नी शेयर किया है। आप जो बता रहे थे कि आप सिर्फ 28 साल के थे जब आपके साथ ऐसा हुआ, एंड आई एम श्योर कि उस वक्त काफी डिफिकल्टीज आती है इसको एडजस्ट करने में, और आपके जो केयर गिवर हैं, आपकी वाइफ, आपकी फैमिली, आई एम श्योर उनका बहुत ही ज्यादा सपोर्ट रहा होगा, जिसकी वजह से ये जर्नी बहुत ही स्मूथ रही आपकी। एंड आई एम नॉट श्योर कि कितने लोगों को यहाँ पे कोलोस्टोमी के बारे में पता है, बट मुझे पता है क्योंकि नितेश को कोलोस्टोमी बैग लगा हुआ था,
और उसमें स्पेशली जब रेक्टम में कोलोरेक्टल जो आपके इंटेस्टाइन होती है, उसके जो रेक्टम पार्ट, जो कि एंड का पार्ट होगा जहाँ से हम स्टूल पास करते हैं, वहां पे जब एज पे कैंसर होता है तो रेक्टम को ही पूरा काट के निकालना पड़ता है। तो बराबर। यस, तो जैसे रितेश को बताया था, उनका 10 सेंटीमीटर का था वो ट्यूमर, और वो एकदम रेक्टम में था। तो उसकी वजह से उनको बहुत कॉन्स्टिपेशन हो गया था, क्योंकि वो स्टूल पूरा ब्लॉक हो गया था उनका कैंसर की वजह से। 2 रेडिएशन से जलाया उसको, एंड उसके बाद में रेक्टम से ब्लीडिंग भी होती थी, क्योंकि स्पेस ही नहीं मिलता था जाने के लिए। जब सर्जरी थी तो डॉक्टर ने जब बाद में बताया कि आपको पीछे से पूरा बंद कर देंगे, एंड आपके स्टमक के नाभि के पास में एक होल करेंगे, वहां से इंटेस्टाइन बराबर। आपका एक बैग पाउच लगाएंगे पेट पे, और वहां से आपका स्टूल पास होगा। तो ये एक अच्छा, बहुत ही बड़ा चेंज होता है लाइफस्टाइल में, और नितेश वाज नॉट रेडी टू हैंडल इट, एंड मेंटली वाज नॉट प्रिपेयर्ड टू फेस इट। तो उन्होंने एक्चुअल में अपना ओटी कैंसिल कर दिया, उन्होंने अपना सर्जरी कैंसिल कर दिया, और बोला कि इससे अच्छा तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन मेरे को नहीं करना सर्जरी। अच्छा। एंड वो मुंबई में थे, मैं कलकत्ता में थी, एंड उसके बाद में उन्होंने एक्चुअल में अपना ओटी कैंसिल करके बुक फ्लाइट बुक करके वो सीधा मुंबई कलकत्ता आ गए। दुर्गा पूजा का टाइम था उस वक्त, सब कलकत्ता तो ऑलमोस्ट पूरा फेस्टिवल का होता है, उसमें कॉलेज बंद थी। एंड तब हमने काफी काउंसलिंग किया, काफी डॉक्टर से मिले, और धीरे धीरे काउंसलिंग के बाद में अंडरस्टैंडिंग आई कि हाँ एक बड़ा चेंज है, बट इट्स ओके, लाइफ के सामने तो कोई भी चीज का मतलब ठीक है, वी विल लिव विद इट, ऐसा था। तो उसके बाद में जब उनका सर्जरी हुआ, और डॉक्टर ने बोला था कि हम ट्राई करेंगे रेक्टम को बचाने का, बट वो टेबल ऑपरेशन टेबल पे ही पता चलेगा। बट अल्टीमेटली वो नहीं बचा पाए रेक्टम को, और सर्जरी हुआ, काफी मेजर सर्जरी था, 45 स्टिचेस थे, 10 घंटे का सर्जरी था। और उसके बाद में उनको बैग लगा दिया था। तो स्टार्टिंग में थोड़े कॉम्प्लिकेशंस होते वो थे, कौन है आपने कौन थे वो? वो आपके मेरे कौन थे? मेरे हस्बैंड थे वो। ओके ओके ओके। हाँ, हाँ। तो उनको स्टार्टिंग हाँ में हाँ। आता था प्रॉब्लम कि कभी बैग लीक हो जाएगा तो वो पूरा स्टूल ऐसे रूम में गिर जाएगा, बहुत स्लिप भी करता हम्म, था। आदत नहीं है बार बार ऐसे धोने की, सब करने की। तो एक होता है, एक इंसान शायद अपना कॉन्फिडेंस भी उस वक्त लूज कर जाता है, और उस समय केयरगिवर का रोल बहुत ही क्रिटिकल होता है कि आप वो कॉन्फिडेंस दिलाएं, और आप ऐसे एक्ट करें कि इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, मतलब अगेन जैसा बोला, लाइफ के सामने तो कुछ किसी का कुछ नहीं है। तो एंड आई ट्राइड, मैंने भी उस वक्त उसके ऊपर काफी पढ़ा, और फिर इसके ऊपर काफी रिसर्च किया, मुझे भी, मेरे लिए भी सब नया था। और एज ए केयर गिवर वी हैव टू गिव दैट स्ट्रेंथ टू द पेशेंट कि अगर आप ही अगर रिएक्ट नहीं करेंगे तो पेशेंट तो रिएक्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि उसके साथ तो हुआ है ये सब। तो बराबर। लेकिन आपको रिएक्ट नहीं करना है, लाइक लिव विद इट, ठीक है, छोटी सी चीज है, हो जाएगा, एंड धीरे 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 1-2 महीने में उसकी आदत लग जाती है। तो एंड उसका एक्सपेंसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। एंड थैंक्स टू ऑस्टोमी एसोसिएशन, जो लोगों को अफोर्डेबल कॉस्ट में प्रोवाइड करते हैं। और उस वक्त हमें सब चीजों के बारे में नहीं पता था, उसके भी काफी सारे एडेसिव और काफी सारी चीजें आती है, उसकी प्रॉपर क्लीनिंग करना जरूरी है, सनलाइट देना जरूरी है, क्योंकि वो एक घाव की तरह दिखता है। तो हमेशा ऐसे लगता है कि वहां पे रेड कलर का एक घाव वुंड है। उसकी प्रॉपर ड्रेसिंग, प्रॉपर क्लीनिंग और सब कुछ करना बहुत जरूरी है। कभी बार उसमें गैस भर जाती है तो फूल जाता है, तो ऐसा लगता है स्टमक फूला हुआ है। तो और भी काफी चीजें होती है उसके अंदर। तो मुझे लगता है कि जब ये किसी का भी अगर कोलोस्टोमी सर्जरी हुआ है, बैग लगा है, तो उनको सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है वो एक प्रॉपर काउंसलिंग की। शायद आपको ऑन्कोलॉजिस्ट उतना टाइम ना दे पाए, कौन दे सकता है, या तो आपके फेलो काउंसलर्स, आपके जो फेलो सर्वाइवर्स हैं वो दे सकते हैं, फेलो केयरगिवर्स दे सकते हैं, जैसे कि मैं इसके बारे में बात कर सकती हूँ, अनिल जी ने बोला है कि आप उनको रीच आउट कर सकते हैं इसके बारे में कुछ भी, क्योंकि जितना एक्सपीरियंस वो शेयर कर सकते हैं उतना शायद कोई और नहीं शेयर कर सकता है, क्योंकि ही इज लिविंग विद इट एवरी डे फ्रॉम लास्ट प्रोबेबली 2 डेकेड्स। तो एंड अनिल जी, आपने जिस पॉजिटिव अप्रोच से इस पूरी जर्नी को, आप उस वक्त बहुत यंग थे, अभी फिर भी आप 50+ है, बट उस वक्त आप बहुत यंग थे, तो जिस जिस पॉजिटिविटी से आपने इस पूरी पूरी जर्नी को मैनेज किया है, और आप आज भी इस फील्ड से जुड़े हुए हैं जहाँ पे आप बोल रहे हैं कि मैं और पेशेंट्स की हेल्प करना चाहता हूँ, ह्यूज ह्यूज रेस्पेक्ट फॉर यू। एंड एनी ने मुझे बताया कि अनिल जी की जर्नी बहुत ही इंस्पायरिंग है, और वो पेशेंट्स को हेल्प भी करना चाहते हैं। सो वेरी वेरी ग्लैड टू कनेक्ट विद यू, हियरिंग योर जर्नी, आपका जो ट्रीटमेंट हुआ था। एंड वो डिफिकल्ट, वो फेज 1-2 साल का डिफिकल्ट होता है, लेकिन हमें जितनी स्ट्रॉन्ग विल पावर आपने अपनी रखी, जितना सपोर्ट आपको मिला,
आज वो आप दूसरों को दे रहे हो, यही मैटर करता है। सो अनिल जी, मुझे आपसे एक चीज जाननी थी कि आज अगर किसी पेशेंट जो यंग एज में, आपका भी बहुत यंग एज था और सेम एज नितेश का भी डायग्नोसिस था, तो उन लोगों को जब ऐसा शॉक लगता है, पहला तो कैंसर का शॉक, दूसरा ट्रीटमेंट सर्जरी का शॉक, फिर कोलोस्टोमी बैग का, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मेरे स्पीच में मैंने बोला है कि जो भी जिंदगी में जो भी कुछ आ, संकट आता है अपने ऊपर, तो उसको फेस करने के लिए घबराना नहीं है। जो भी है उसको एक्सेप्ट करना है, जो रियलिटी है उसको स्वीकारना है, और उसके साथ जो है उसके साथ आगे चलना है अपने को। तो एक इसमें एक ऐसा पॉजिटिव देख सकते हैं कि अपने सामने लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं, कई हार्ट अटैक में मर जाते हैं, ऑन द स्पॉट डेड हो जाते हैं। तो भगवान ने अपने को एक मौका दिया है कि कुछ ना कुछ अपन ट्रीटमेंट करके तो जी सकते हैं। अपना तो वैसा नहीं हो रहा है कि ऑन द स्पॉट जा रहे हैं अपन। तो ऐसा पॉजिटिव सोच करके और उसको वीक पॉइंट ना देखते हुए ज्यादा पॉजिटिव से, क्रिएटिविटी से काम करना चाहिए। यही मैं आप जो भी यंग है, जो जो भी एज होगा, तो उसको मैं यही बोलूंगा कि धीरज रखो, फेस करो और आगे बढ़ो। अनिल जी नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। अनिल जी नमस्कार। मैं नमस्कार। चंद्रभूषण शुक्ला वो समय स्टेशन से। हेलो। हाँ हाँ कनेक्टिंग हाँ, नंबर। बोलो 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 बोलो। हाँ। गुप्ता जी आपके पास गए थे, आप जो बता रहे हैं डिसेबिलिटी का, वो मूवमेंट हाँ हाँ, करीब करीब और सक्सेस होने वाला है। इसी हफ्ते में शेखर भाई गुप्ता जी जा रहे हैं दिल्ली। बराबर और बराबर। हाँ, हाँ दूसरा चीज, कोलोस्टोमी 3 टाइप का होता है, यूरोस्टोमी, हाँ, इलियोस्टोमी और कोलोस्टोमी। बराबर। और जो, हाँ, आप जो काम करते हैं ना, वो हम्म, अ, उसको इरिगेशन बोलते हैं। आपको बराबर, जो वेरी गुड। जो हम्म आप इरिगेशन करते हैं, हम्म, वो बाकी का जो पानी अंदर लेते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, जो आप बता रहे थे, वो चीज अलग होता है। एनिमा और बोल रहा मैंने, हाँ। हाँ हाँ, इरिगेशन। एनिमा, एनिमा अलग होता है, इरिगेशन अलग होता है। हाँ हाँ, वो हमारी लैंग्वेज है इधर का। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब उसके लिए हम्म, मैं आपकी जानकारी बता दूं। वो चलिए। सुमरी एसोसिएशन बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है, फ्री में बैग देने से लेकर रेले तक, और अगर कि हम लोगों का काउंसलिंग भी होता है। बराबर तो मारिया, बराबर। हाँ, मारिया मैडम है, उनको अगर चाहिए हम फोन नंबर दे देंगे। वो बोरीवली में रहती है। ये अंजलि मैडम है। अपना देखेंगे तो हमेशा एक, अगर हम्म आप सपोर्ट ग्रुप में जुड़े होंगे, तो मोस्टली है ना, अपन है ना। लोगों का सपोर्ट ग्रुप में देखिए, कविता केलकर, वो हमेशा हम्म, वो करती है, मैनेज करती हैं। कभी हाँ खाने हाँ। पीने के ऊपर कहीं रहे, कभी सीजन के ऊपर, कभी क्या, हमेशा। या योगा सेशन भी रहता है। लेकिन हम्म, क्या है, तो जो आप बता रहे हैं ना कि इसमें थोड़ा सा जुड़ना लोगों को समझ में नहीं आता है कि हम जुड़े हैं, हाँ हाँ हाँ। अपना तकलीफ बताएं, वो छुपा के रखते हैं। हम्म। और डिम्पल मैडम जो बता रही हैं, वो भी हम्म, ठीक है, उनका भी एक्सपीरियंस है। रास्ते हैं, जिंदगी जीने के रास्ते हैं, रास्ते खत्म नहीं होते। बराबर अगर बराबर। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे, तो हाँ खाली आपका रूट चेंज हुआ है। आप हाँ, समझे नहीं, बराबर जो बराबर ज्यादा कुछ नहीं हुआ। आपका बराबर। रूट आर्टिफिशियल बना दिया गया, बाकी तो कुछ वही है ना। हाँ, बराबर। स्टार्टिंग में मेरा भी 8 साल हो गया। मैं भी हाँ हाँ मार्केटिंग जॉब में हूँ, 60 साल का हूँ। शेखर भाई हाँ हाँ 70, शेखर भाई 73 साल के, 73 हाँ ईयर। हाँ हाँ हाँ, अब देख बराबर। कितना एक्टिव है। अभी कल मेरे साथ में पूरा दिन वो कुछ इंटरनल मैटर चल रहा है, तो हाँ हाँ चैरिटी कमिश्नर के यहाँ वहाँ भाग दौड़ हाँ करते हाँ रहते हाँ, हैं कुछ। बम्बई हाँ, में, तो ये बराबर। ऐसा, हाँ, ये है कि खाली हमें आपको क्या करना कि जितने भी पेशेंट हैं, उनको संस्था का नंबर दीजिए, वो जुड़े और अपना अपनी हम्म बात बताएं। हम यहाँ से सारी सुविधा प्रोवाइड करते हैं। अभी बराबर। कोरोना काल में भी हम लोग दिन रात पोस्ट ऑफिस जाना, सबको ये भेजना, वो भेजना, जिसके पास पैसे नहीं वहां तक मदद करते हैं। डेफिनेटली हम्म, चंद्रभूषण जी, चलिए मैं चलिए। अष्टमी के बारे में, हाँ, नंबर भी शेयर कर देंगे और बताएंगे ताकि लोगों को उसका बेनिफिट मिल सके हाँ राइट टाइम पे। थैंक यू सो मच फॉर शेयर। हाँ, मेरा नंबर आप दे दीजिए, मेरा नंबर दे दीजिए। और वो सुमीर सेशन का नंबर वेबसाइट पर है, उसमें हम लोगों का सब का है करीब करीब, वो देख लिया। और दूसरी चीज मैडम आपको एक चीज क्लियर बता दे, कोई गरीब आदमी है, कोई कुछ आदमी है, जैसा भी है, हम हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। वंडरफुल। उनके घर जाना हुआ, घर जाने का हुआ, अगर आसपास में भी नर्स भेजने का हुआ। आमतौर पर तो भी तो मारिया मैडम का थोड़ा एज हो गया है, उनको ज्यादा वो नहीं परेशान करते। वो टाटा की एक्स नर्स हैं, वो सुविधा देती हैं। वंडरफुल। चलिए ठीक है, चलिए। हाँ आप अपना नंबर भी शेयर कर देंगे चैट में। हाँ, कर दूंगा ना। थैंक यू, थैंक यू। ओके, ठीक है।
अभी तो अंजलि जी से ओके। और सुनेंगे। नहीं, यानी के पास तो नहीं। मैं एनी से ले लूंगी। थैंक यू। मैं I'll take from you. हाँ, यानी के पास नंबर है ना मेरा, यानी के Definitely. पास नंबर है। मैं एनी से लेती हूँ। Thank you. Thank you so much. हाँ Hi Anjali ji, would like to hear your experience of today's circle, and firstly, lots of congratulations on all the success and happiness, joy that's coming in your life. Many, many congratulations. Thank you, Dimple ji, and Dimple ji, congratulations you too also. Happy married life. अच्छा, अनिल जी से मैं ये कहना चाहूंगी, आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट ही सो पॉजिटिव, ही फॉट बैक एंड एवरीथिंग। जो उन्होंने युद्ध किया, मैं हिंदी में बात करूंगी, जो उन्होंने फाइट बैक अच्छी तरह किया, और यू आर वेरी मोटिवेट पर्सन। क्योंकि मुझे भी इसके बारे में पता नहीं था, आप जब बता रहे तो पता चला। एक्चुअली आई वाज लेट, यू नो, किसी और काम में थी, मैं दूसरे जूम मीटिंग में थी, पता चला मेरा शायद आने में जल्दी आई, लेकिन आपसे बहुत सीखने को मिला। एंड यू आर सो पॉजिटिव। जो यंग बॉयज है, अगर यंग पीपल है, किसी को ये होता है, तो आपसे बहुत जानने की यू नो कोशिश करेंगे आपसे, क्योंकि मेरे लिए भी कुछ नई बात आई, सुनने में आई ऐसा कैंसर के बारे में। लेकिन आपने जिस तरह से फाइट किया, इट्स टू गुड। हेड्स ऑफ टू यू, और यू आर रियली इंस्पिरेशन टू ऑल। हेड्स ऑफ टू यू। Thank you. Thank you. Thank you so much, Anjali ji, for sharing this. Mehul, would you like to share? या डेफिनेटली. पाटील साहेब नमस्कार. माझं नाव नमस्कार. मेहुल व्यास. नाशिक व्यास. मध्ये माझं व्यास. हा, मी गुजराती आहे, पण नाशिक मध्ये माझं बालपण गेलंय. एच जोशी, एन जोशी माझे मामा आहे बरं नाशिक बरं. मधले. हा, त्यामुळे आपलं थोडं कनेक्शन आहे आता कुठे आहेत मग? आता कुठे आहेत तुम्ही? Not done. आता मी युएस ला आहे, पण मी प्रॉपर पुण्याचा आहे. अच्छा, बरं बरं. हो, आणि मी Not fair, Mehul. अच्छा, मैं हिंदी में बात करता हूँ. ये लोग नए बात नहीं करने देंगे अपने को. हाँ हाँ. तो मैं भी स्टेज 4 कैंसर सर्वाइवर है. थ्रोट कैंसर का. मैं सिगरेट और गुटखा खाता था, तो मेरे को गले का कैंसर था. 7 साल हो गए उसको. आपका स्टोरी सुन के मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिला. 21 इयर्स बहुत बड़ी बात है. और आप जो 28. इजीली हाँ 21. हाँ, वो तो बहुत बड़ी बात है. एज 28. और इतना मतलब आपको देख के बिल्कुल लगता नहीं है कि ऐसे आप इसमें से गए हो. और डेफिनेटली मैं डिम्पल जी से आपका नंबर लूंगा, आपसे कांटेक्ट में रहूंगा. मैं भी काफी कैंसर सर्वाइवर से बात करता हूँ, तो किसी को मुझे अगर लगा कि आप थोड़ा प्रोत्साहन देऊ शकता तुम्ही, तर मैं पक्का ये करेगा. और मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी, जो आपने बोला कि लोग एक्सीडेंट से मरते हैं, कोविड से मरते हैं, एक दिन में मर जाते. ये सेम मैंने भी मेरे दिमाग में यही रखा कि मेरे 2 दोस्त मर गए जब मेरा ट्रीटमेंट चालू था एक्सीडेंट में. तो मैं वही सोचा कि उससे तो आपण अच्छा है ना. मेरे पास थोड़ा टाइम है. एक बात मी सांगतो व्यासजी. मी ज्यांच्या मार्गदर्शनाखाली गेलो होतो, मी माझ्या स्टोरी मध्ये सांगितलंय, डॉक्टर कवडे पाटील म्हणून होते. हो. त्यांनी मला सगळं दाखवलं त्यांचं. तर ते स्वतः 1 वर्षांनी त्यावेळी म्हणजे 2003 मध्येच ते एक्सपायर होऊन गेले. अरे बापरे. अच्छा. हो. ओके. आणि ते माझ्यापेक्षा सगळ्या बाबतीमध्ये सक्षम होते, आर्थिक वगैरे सगळ्या बाबतीमध्ये. तर त्यांनी अमेरिकेत पण ट्रीटमेंट घेतली 2003 मध्ये. पण तरी देखील त्यांचा जीव म्हणजे देव नहीं वाचवलं देवाने त्यांना. तो वो जिन्होंने मेरे को बोला वो खुद इसमें चले गए हैं, ऐसा मैं बोल रहा. खाली इसमें कॉन्फिडेंस ज्यादा चाहिए आदमी में, ऐसा मेरा कहना है. नहीं, और मुझे और एक सवाल था आपसे, मतलब मेरे लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी, कि आप क्या, आपका लाइफस्टाइल, मतलब खाना पीना क्या करते हैं, क्या स्पेशल कुछ? हाँ, एक बात मैं शेयर करना इसमें भूल गया कि ये जो मैं आपने फिट एंड फाइन जो है अभी, तो इसमें सबसे ज्यादा जो रोल है वो मेरी जो वाइफ है, सुवर्णा नाम है उसका रोल है इसमें. सब कि सब टाइम पे देता है मेरे को, यानी जो भी रहता है, जो खाने का टाइम. हाँ, एक बार है, मैं रोज 1 घंटा मेरे शरीर के लिए देता हूँ. घूमना, एक्सरसाइज करना, टाइम पे खाना. और मेरा ड्यूटी जो है टीचर हूँ मैं, तो उसमें मेरे को खुद के लिए टाइम दे सकता हूँ मैं ड्यूटी करके. ज्यादा मेरा शेड्यूल ऐसा बिजी नहीं है, तो भी मैं पार्ट टाइम में मेरा रियल एस्टेट का भी बिजनेस है. फ्लैट्स, प्लॉट्स बिक्री करने का, बेचना देना, ये भी मैं काम करता हूँ. तो साइकिलिंग करता हूँ मैं. हफ्ते में 4 बार मैं साइकिलिंग को जाता हूँ. तो 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर एक टाइम में मैं साइकिलिंग करता हूँ. तो साइकिलिंग रोज का एक 7-8 किलोमीटर का वॉकिंग, और
थोड़ा बहुत एक्सरसाइज, थोड़ा सा ये रामदेव बाबा के श्वास के जो व्यायाम होते हैं वो करता हूँ, पेट के व्यायाम, ऐसे ये सब उसमें भी मैं मेरा टाइम देता हूँ उसके लिए। अच्छा, मतलब खाने पीने का ऐसे ये मत खाओ वो खाने मत खाओ पीने ऐसा का कुछ नहीं। एक है कि ज्यादा जो हेवी रहता है, हेवी फूड नहीं लेना है अपने को बस। अच्छा। हाँ, और इसमें मेरे को एक ऐसा प्रॉब्लम आने लगा था पिछले 7-8 साल में, कि जो लीवर जो रहता है ना, वो ब्लॉक हो जाता था मेरा, ब्लॉकेजचा प्रॉब्लेम मला यायला लागला होता. आणि त्याच्यामध्ये काय व्हायचं मग, की जे आपण खाल्लेलं राहायचं ते पुढे पास व्हायचं नाही, पास हाँ होत हाँ नव्हतं. आणि मराठीत हिंदीत बोलू का आता? हिंदी हाँ, बोला ना, म्हणजे बाकी लोकांना हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ. तो ये 7-8 साल में मेरे को ऐसा प्रॉब्लम आने लग गया था कि जो अपन जो खाना खाते तो म्यूट म्यूट झाले तुम्ही। म्यूट पे हो गया है। यस यस, हाँ आया क्या आवाज? हाँ आया। हाँ हाँ. तो वो पास नहीं होता था और ब्लॉकेज हो जाता था, और उसमें इतना तकलीफ होता था मेरे को कि पेट में दुखने लगता था, और फिर उसके बाद पूरे दिन भर दुखता था, फिर उल्टियाँ होती थी मेरे को, उल्टियाँ होती थी. यानी अभी भी वो प्रॉब्लम है लेकिन थोड़ा कम हुआ है. उल्टियाँ होने के बाद फिर जो भी पेट पूरा पूरा पेट खाली होने के बाद वो जो ब्लॉकेज था वैसा, फिर वो खुलता था और गैस निकलता था उसमें से. वो जो अपना दिया हुआ है कोला, जो रास्ता दिया हुआ होता है लाल रेड कलर का, उसमें से फिर उधर गैस निकलने के बाद मेरे को शांत लगता था. लेकिन ये सिलसिला 2 दिन चलता था मेरा पूरा. फिर मेरे को किसी ने बोला कि गुजरात में ऐसा ऐसा करके है एक हॉस्पिटल है, आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल. उधर फिर मैं गया तो उन्होंने मेरे को 1 महीने का ट्रीटमेंट दिया. अभी गया था मैं 3 महीने पहले. तो उन्होंने 1 महीने का मेरे को सब दवाई दिया, चूर्ण वगैरह. फिर उसमें से उन्होंने बहुत सारे दिया था, लेकिन उसमें से खाली 2 जो चूर्ण होते वो हाँ। मैंने वो रामदेव बाबा यानी सब कंपनी के बने हैं, तो वो मैं कंटिन्यू किया. मैं तो मेरे को 2-3 महीने से अभी रिलीफ मिला है उसमें से. अभी वो ब्लैकेज 3 महीने से मेरा ब्लॉक हुआ नहीं तो पहले कभी भी हो जाता था, महीने में 2 बार भी होता था, हफ्ते में 2 बार भी होता था, नहीं तो 4 महीने भी नहीं होता था. ऐसा मेरे को प्रॉब्लम आता था, लेकिन अभी वो कम हो गया. और खाने में खाली एक ही बोलूंगा मैं कि ज्यादा हेवी खाने का नहीं, लिक्विड फॉर्म में ज्यादा खाने का. सब्जी भी रहा तो वो पतला सब्जी उसमें वो करके खाने का अपने को, म्हणजे जे बारीक. पचायला बरं, डायजेशन हाँ त्याचं इजी हाँ इजी हाँ, राहणार। डायजेशन हलकं व्हायला पाहिजे. येस सर. करेक्ट करेक्ट. नाही नाही, थँक्यू. तुम्हाला भेटून आनंद झाला. म्हणजे नाशिकला आल्यावर नक्की भेटेन तुम्हाला मी. 100% या. चालेल. ओके. thank you so much for sharing, Anil ji and Mehul, for asking these very relevant questions. क्योंकि खाने का काफी ध्यान रखना होता है, उसके अंदर आप ज्यादा गैस वाली चीजें नहीं खा सकते हो, टाइमिंग सही होना चाहिए खाने का. एंड थैंक यू अनिल जी कि आप अपने अपनी वाइफ को अप्रिशिएट किया उनके एफर्ट्स के लिए, क्योंकि बहुत एफर्ट्स जाता है और उनका भी उतना ही इसमें मतलब रहता है जितना आपका जो विल पावर रहता है, उतना सपोर्ट रहता है इस जर्नी के लिए. सो थैंक यू सो मच अनिल जी. दीपक जी, आप कुछ शेयर करेंगे? भाई आप गुजरात में कौन सी हॉस्पिटल में गए थे? एक गुजरातच्या हॉस्पिटलचं काय नाव आहे? एक मिनिट. वलसाड तो नहीं गए थे अपना? कोणतं गाव आहे? हाँ, वागलधरा करके गाँव है. पागलदा ये गौमूत्र का मेन है उधर. हाँ हाँ, वागलधरा में गया था. आरएमडी जो पान मसाला बनाता है ना, हाँ वही. हाँ हाँ आपको हाँ कैंसर भी वही देते हैं और वही दवा भी वही दे रहे हैं. पिशवी काढून घेतली. नहीं, मैं उनको पहचानता हूँ पर्सनली भी, क्योंकि अच्छा वहाँ अच्छा. मेरे बहुत पेशेंट वहाँ पर जाते हैं. हाँ, आरएमडी बराबर है, वही हॉस्पिटल है दवाई फ्री वागलधरा में का. देते हैं वहाँ पर. स्टार्टिंग में 10 दिन रहना फ्री में है सब. हाँ हाँ हाँ, बराबर, राइट राइट, एग्जैक्ट. बराबर ना? बराबर. हाँ हाँ. थैंक बाकी यू. लेकिन आपका उससे मेरे को स्ट्रॉन्ग आराम विल गिरा है पावर है, मेरे वो को. मेन काम कर गया आपको. आपका जो हाँ स्ट्रॉन्ग हाँ विल पावर है ना, वो मेन काम कर रहा है. वेरी और आपका ट्रू. फैमिली सपोर्ट कर रहा है, इसलिए इन चीजों. हाँ हाँ, बहुत बहुत सपोर्ट है मेरे को. नहीं, कैंसर में इनफैक्ट आई हियर दिस एवरी डे ऑल द टाइम. आप सबने भी, आप और सब लोग जब भी इसकी बात करते हैं, इट सपोर्ट्स दैट कि
विल पावर, फैमिली सपोर्ट, इट हेल्प्स, इट डज वंडर्स। ट्रीटमेंट सबका सेम ही होता है, बट क्या चीज है कि कुछ लोग इतना इजीली सरवाइव करते हैं, इतना इजीली मतलब उससे कैंसर को खत्म कर देते हैं, उसको they win over it, but many are not able to, because making right choices at the right time, having that good strong family support and this willpower, strong willpower, जैसे आपने बताया कि you give 1 hour to yourself for fitness or wellness, and that is what matters. So these are very very small things, but it can actually save someone's life. तो ये काफी important चीज बोली आपने अनिल जी. Thank you so much. Rajendra ji, do you want to share anything? ये मेरा भी सिमिलर पॉइंट है. पाटिल जी ने बहुत अच्छी तरह बताया कोलोस्टोमी का, लेकिन मुझे एक चीज बतानी है कि कोलोस्टोमी कभी कभी डॉक्टर सर्जन के लिए बहुत इजी ऑप्शन होता है. मेरा जब ऑपरेशन हो रहा था ना, तो वो जो डिस्टेंस बिटवीन द एनस एंड ट्यूमर वो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो कोलोनोस्कोपी में दिखाते. तो मेरा जो डिस्टेंस था मेरा ऑपरेशन में एनएस और ट्यूमर तो 7 सेंटीमीटर था. तो डॉक्टर ने मुझे आके बता दिया कि आपको कोलोस्टोमी करवाना पड़ेगा, मे बी टेम्पररी बट कोलोस्टोमी मस्ट. तो मेरे बहुत स्टडी भी किया था, पर मेरा एक डॉक्टर फ्रेंड दूसरा भी था, सर्जन था. तो मैंने उसको बताया था कि जब भी ऑपरेशन हो तभी आपको रहने का है और आपको इंसिस्ट करना है कि अगर कोलोस्टोमी कैन बी अवॉइडेड और नॉट. दिस इज जस्ट फॉर एजुकेटिव पर्पज आई एम टेलिंग यू. तो मेरे डॉक्टर जो था सर्जन जो उसके साथ है वो. तो मेरा जब कोलोस्टोमी करने का बात है तो डॉक्टर ने बोला कि ट्राई करो कि कोलोस्टोमी आप अवॉइड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो. तो मेरा ऑपरेशन 1.5 घंटा ज्यादा चला, बट विदाउट कोलोस्टोमी माय सर्जरी वाज ओवर. कोलोस्टोमी किए बिना मेरी सर्जरी हो गई. और मेरे जो सर्जन डॉक्टर था जब भी ऑपरेशन से बाहर आया तो पहला उसने यही बताया कि आपकी कोलोस्टोमी अवॉइड हो गई है. तो मेरा एक रीजन ये भी है कि हमको ये भी जानना है कभी कभी कि कोलोस्टोमी इजी ऑप्शन बन जाता है कई डॉक्टरों, तो इमीडिएटली वो लोग कोलोस्टोमी कर देते. लेकिन अगर रेक्टम कैन बी सेव तो ट्राई करने के लिए यू हैव टू हैव अ वेरी गुड डॉक्टर हु कैन बी गुड सर्जन. तो समटाइम और फॉर सम पेशेंट आई थिंक कोलोस्टोमी कैन बी अवॉइडेड. उसके बाद का लाइफ तो ठीक है, ये अच्छी तरह से पाटिल साहब ने जो किया आई अप्रिशिएट, बट उसके बाद मेरी कोलोस्टोमी नहीं हुई और मेरे 5 साल अभी कैंसर के हो गए. हाँ, तो एक प्रॉब्लम तो रहता है, जैसे मुझे स्टूल का प्रॉब्लम ज्यादा रहता है कि करीब दिन में 6-7 बार मुझे जाना पड़ता है. लेकिन ये यूज टू हो गया हमें कि चलो यही है. खाने में भी उन्होंने जो बताया ऐसे खाने में भी केयर करना पड़ता है, वो सभी ठीक है. लेकिन मेरी कोलोस्टोमी कैसे बच गया ये बिकॉज ऑफ माई डॉक्टर. वो डॉक्टर जो सर्जन था वो सर्जन वेरी इंटेलिजेंट सर्जन है, अहमदाबाद का एससीजी हॉस्पिटल में. तो दिस इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल दोज पेशेंट. Sometimes you also have to think in this direction if you are going for this surgery. Thanks. Thank you so much Rajendra ji. And I know आपका भी similar type का ही कैंसर था, तो काफी you can relate with this journey a lot. Yes. Thank you. Anil ji, as we are coming close to the session, आप कुछ सबके साथ में शेयर करना चाहेंगे? नहीं, अभी सर ने जो बताया ना अहमदाबाद से, तो उसमें मैं एक ही बोलूंगा कि उन्होंने बराबर सजेशन दिया है कि ओपिनियन 2-3 ओपिनियन लेना चाहिए कि अपना बच सकता है क्या रेक्टम ऐसा करके. लेकिन वो डॉक्टर जो है तो एज देखते हैं आदमी का कि इसका एज कितना है, इसको कितना अपन जीवन दान दे सकते हैं, इसके हिसाब से वो उनका डिसीजन लेते हैं और सिचुएशन देखकर वो डिसीजन लेते हैं. अच्छा जो होगा वो. तो बस मेरे को इतना ही कहना है. खाली अभी जो डिसेबिलिटी का जो हमारा मुद्दा है उसको कैसा आगे लेके जाएंगे वो देखो सब मिलके. Definitely. उससे अच्छा फायदा हो जाएगा सबको. Yeah, for sure. Thank you so much, Anil ji, for sharing your journey and the positivity and the good work that you are doing around. Thank you so much, and thanks everybody for being a part of this space once again, because दुनिया के किस कॉर्नर में कहाँ पे किसकी क्या जर्नी है और कितना अच्छा काम कर रहे हैं सब लोग, ये तभी पता चलता है जब हम यहाँ पे आते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं. एंड हाँ मैडम एक मिनट मैं एक और बात करना चाहता हूँ. इसमें लोग है ना बोलने को घबराते हैं कि मेरे को ऐसा हुआ है ऐसा करके. तो वो सबसे पहले दिमाग में से निकाल देना है और पूरे दुनिया को बोलना है अपने को कि अपना क्या हुआ है ऐसा करके. जब दुनिया समझ सकती है कि ये क्या प्रॉब्लम है ऐसा. अपने बाजू में अभी नासिक में
वो जो एसोसिएशन के गुप्ता जी और जो लोग हैं, उन्होंने मेरे को एक नंबर दिया कि ऐसा ऐसा नंबर है अनिल जी, इनको कॉल करो तुम। तो मैंने जब वो कॉल किया तो वो मेरा एकदम नजदीक का रिश्तेदार निकला मेरा, लेकिन मेरे को खुद को पता नहीं था कि उसको ये प्रॉब्लम है ऐसा करके, यानी मालूम नहीं गिरता और लोग बोलते नहीं कि क्या हुआ है। तो ये डिस्कस करने के बाद उसमें से कुछ तो भी अच्छा सोल्यूशन निकलता है, इसलिए एक दूसरे से शेयर करना चाहिए, बात करना चाहिए। कोई ऐसा ये नहीं रखना है कि अपन का कोलेस्ट्रॉमी हुआ है, ऐसा कोलेस्ट्रॉमी को बुरी नजर से देखना ही नहीं है, कुछ और है ऐसा समझना नहीं है, ये मेरा कहना है। Thank you so much, Anil ji, and thank you everybody. Very very insightful, very informative, and very encouraging session. The healing circle that we did today, and this is what keeps us motivating, keeps us going, and looking forward to many more such inspiring stories. And Anil ji, definitely मैं आपसे connect करूँगी, और आपने जो डिसेबिलिटी वाला बताया उसके लिए हम साथ में कुछ कर सकते हैं, तो डेफिनेटली हम सब मिलके इसको आगे लेके जाएंगे। या चलिए, definitely. Thank you so much everybody, and we'll see you Saturday को. Bye. ओके, थैंक यू।